file in Excel which contains two sheets. The first one is the sales database and the second one is the dimension tables. So the sales database contains the basically this is called the fact table. If we try to understand the star schema and data modeling, there are two kind of tables primarily in your schemas, which is fact table and dimension tables. Okay, so the fact tables are those tables which contains your real-time transactions, or you can say records, whereas the dimension tables are those tables which contains the unique values within those tables, which supports the fact table in order to do some further good analytics and to save time in terms of speed optimizations and calculations. So what I will do is I will bring two tables from these two sheets into the Power Pivot window where I will do the lookup. So as an Excel user, I know that you might know, or I can assume that you know that, for example, if I want to have next to the customer ID, if I want to have a state column which is not available in this particular data set and which is available in the dimension tables from this particular table. So in front of each of the customer we have the state code, right, and the state name as well. So for example, if I need to bring that data, or we need to look up that data state codes in front of each of the customer number, so we have to use the VLOOKUP here. And in the VLOOKUP you need to define the lookup value, right? Then you have to define the table array, and after selecting table array you need to select column index number and you use false for the exact match. So you will get all these state codes here next to the customer ID column. This is we do primarily in Excel, right? But when it comes to the BI when it comes to the Power Pivot in Excel, we have to use the explicit measure, which is the DAX. So in DAX we don't have the VLOOKUP, either we have the related function there, and we will utilize that. So let me just delete this column from here, and what I will do is I will bring that data into the Power Pivot. So now let's go to the Power Pivot tab, and first you need to bring this data into the data model. So you can see here there is a button called add to data model. So I will click on this add to data model, and now you can see that a new window has been opened where you can see the data preview. You can't change any kind of data from here. You need to change in the data source. Okay, and if you want to go again switch to the Excel, you have a very small icon on top of the Q80 quick access toolbar on top left side. When you click on that, you will again go to the Excel part. Okay, and when you again wants to come to the Power Pivot window, you can click on manage. One thing, remember that when you are doing, okay, one thing you should consider that this particular data should be in a table format, because if this data is not in a table format, it will not be added into the data model. Okay, why? Because as I told you that Power Pivot does not contains any kind of cell or relative and absolute reference, whereas when we write DAX, we call tables and column names within that table. Okay, so it should be in a table format. Alright, so once you have added this data into the data model, let me add one more table, which is the customers, this table. So I will click on add to data model, and now you can see that within this Power Pivot window, on the bottom you can see there are two sheets is being added, one for the customer dimension table and then the other one for sales DB. Now what I need to do is the next part, before I use lookup in DAX, what I need to do is I have to click on diagram view, and now you can see that there are two tables here, right? We just added into the data model. Now between these two tables we need to create a relationship in order to do the lookups.
And there are different kind of relationships we can create, one to one, one to many, many to many, many to one. Okay, so that has a different concept. Now for this specific webinar, we are just creating a relationship, and I will also add one video link as well with this webinar video on our YouTube channel, so you can refer on that what are those kind of relationships and what are those important points to consider when we create relationship. But for a primarily level, you need to understand that a relationship creates between a dimension and a fact table. Now relationship can be created between two dimension tables or two fact tables, but that would not be a star schema, that would be a snowflake schema or other schemas. But in this simple schemas, star schemas, we need to consider that there are two tables. One is the fact table where we have all the real-time transactions and the records available, and in the second table it contains some unique values. So we need to find out the common column which is available in both the tables. So customer ID is available in both the tables, and we can join this by just dragging and dropping simply, and it will draw a line. So now you can see that it has created one to many relationship. So at the first part it's write one, and in the second end point it's being static, which means one to many relationship. Okay, and when I hover my mouse on this line, you can see that the customer in these two different tables field has been already highlighted, okay, with a border line. So this means that the relationship has been created. If you don't create a relationship, it will not work a lookup here. Okay, now what I need is I need the state column, right? And for that I need to have a column here. Okay, so how to add a column? Let me go to the design tab. Okay, so you will go to design tab. On the left side you will find add column feature. So when you click on add column, you will get a column at the end. First you can define a name for that particular column, for example state ID, and then you can start writing DAX in that. Okay, so we will start equals to related, and which column we needs to bring in the sales TB from the customer dimension table. So we want the state code from the customer dimension table, and I just need to define that particular column name only, and I have enclosed this into the related DAX. And now you can see that all the state IDs with respect to each of the customer ID has been available here in my this particular data set. Now for example, now you have to understand this. Now for example, if I go to the diagram view and I just delete this relationship, okay, so let me delete this from the model, and when I go back to the data view, you will find the error here. Why? Because it is not able to relate that particular column from customer ID table, and it will not give you, or it will not fetch the results. So this means that when you start learning Power Pivot is a tool which is available in Excel, which has two key components you need to understand as a user. The first thing is that you need to have a clear concepts on data modeling, star schemas, fact tables, dimension tables, primary key, foreign key, all these concepts you need to understand them in detail. And then once you do data modeling, you start with the data modeling, then you will be able to do some advanced analytics by using some calculated columns and explicit measures, and you can write DAX in it. Okay, so let's see. Now there are some errors, right? And we know that there is no relationship between these two tables. So if I again create the relationship, I will drag the customer ID with the customer, and if I go to the data view again, now you can see that it can easily relate. Now it's very simple and easy as compared to the VLOOKUPs we use in Microsoft Excel. In the DAX, you don't have the VLOOKUP, you have the related DAX. So I hope with this scenario you have understood that how we work around with the explicit measures. Another thing which I want to tell you here, that for example if I want to sum
get the sum of this sales amount column. So this is the area you can see here. This is the area where you can define the explicit measures, and how the explicit measures look like in your Power Pivots. Let me show you. So I will come here and I will give a name first here, total sales, okay, and then colon equals to, now I will write a DAX, which is the sum of the sales DB table and for the sales amount. So this is very basic way of writing and starting with the explicit measure. First you define the name of that particular explicit measure, then the colon sign, and then you start with an equal sign, and then you write similar kind of fashion you do with the Excel functions. So you write particular DAX and fill the relevant criteria. So when I press enter, so I will get an explicit measure name total sales, which is this amount. And let's say if we want to bring this into the Excel view, so what I can do is I will just go to the pivot table and I will select pivot table here. So it will ask me either you want to create a pivot table in a new sheet or an existing worksheet. I will select a new sheet here, and remember that this is not now a normal pivot, it's a power pivot table, okay, where you can see all different tables are there. And as we know that we have created that explicit measures in the sales DB table. So here you can see that FX sign. This means that this is the explicit measure which contains a DAX which has been defined by a user. Whereas we have also some columns which has a shipping amount and sales amount. So implicit measure, these are the implicit measures, and the ones we have put the DAX in it with this FX small symbol is called the explicit measure. Now you need to go back again to the Power Pivot window. Simply you have to click on manage and you will again come to this window as well. The best part is that now if you have created the entire data models and so many explicit measures, for example, according to your data sets for analysis in Power Pivot in Excel, you can also do migration. You can also do migration activity when it's come to the Power BI. So you can migrate and import all those measures and models into the Power BI as well. Okay, so I will add that video in the video description, so do refer that video as well. Right, so this is how we started with the writing DAX in Power Pivot. Okay. Define some of the DAX in Power BI, and as I told you, the way of writing DAX is very kind of a similar when it comes to the BI application, Power BI, and with respect to the Power Pivot in Excel. Learning that how to make a data warehouse in Microsoft Excel by using Power Pivot add-in. We will be getting data from the multiple sources. That will be the from Access file, from Notepad file, from different Excel workbooks to the one place that is called the Power Pivot in Microsoft Excel. And we will look into that how we can create the relationships between multiple tables at the back end, and also we will import this kind of data in Power BI and see the difference between in Microsoft Excel Power Pivot window and Power BI. This video will be in bilingual, and the most of the times I will be using the Urdu language because I am uh, making this video for my national local audience so that they can understand easily. So let's get started. I have one folder which consists of different files. As you can see, there are 3 Excel files, 1 Notepad file, and 1 Microsoft Access file. And from these different files, uh, we will be getting all data together in Microsoft Excel in the Power Pivot add-in. So basically, Microsoft Power Pivot is a tool where you can import uh, unlimited rows of data from multiple sources to create a data warehouse, and you can write DAX, data analysis expressions language, to have some insights of a data or to create the analytics for your business. So इस वीडियो में हम बेसिकली डेटा जो है वो कंपाइल कर रहे होंगे मल्टीपल सोर्सेज से, और हम देखेंगे कि किस तरह की फाइल जो है
वो पावर पिवट में हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है, और फिर जब डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज का डेटा एक जगह आ जाता है तो हम बैक एंड पे टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर हम इसी प्रोसेस को माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में भी देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक फाइल ओपन है इस वक्त, सुपर स्टोर एक्सेल के नाम से, ठीक है। और इसमें आपको एक डेटा नज़र आ रहा है जिसमें 4 कॉलम्स मौजूद हैं, डेट, मंथ, ईयर और क्वार्टर, ठीक है। और ये एक नॉर्मल रेंज है, हमने इसको अभी टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि जब कभी भी हम किसी डेटा को पावर क्यूरी में या पावर पिवट में ऐड करते हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस में होना चाहिए। तो इसका मतलब वो टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट होना लाजमी है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास CSV फाइल्स हैं या कोई और डिफरेंट सोर्स फाइल है तो हम उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम प्राइमरीली बेसिस पे इस नॉर्मल रेंज के डेटा को, जो कि एक कैलेंडर टाइप के फॉर्म में मौजूद है, हम इसको पावर पिवट में ऐड करेंगे और हम क्लिक करेंगे ऐड टू डेटा मॉडल। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है आप 2010 इस्तेमाल कर रहे हो या 2013 इस्तेमाल कर रहे हो या 2019 इस्तेमाल कर रहे हो। डिफरेंट वर्जन्स के साथ डिफरेंट पावर पिवट के ऐड इन को इनेबल करने की स्ट्रैटेजी है या डाउनलोड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2010 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से पावर पिवट का ऐड इन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप 2016 या 19 इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको पावर पिवट इनेबल करना होता है, जो कि आप फाइल के मेन्यू में ऑप्शंस में जाकर और इसके बाद आप एड इन्स में जाकर कॉम एड इन्स में पावर पिवट को इनेबल करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोफेशनल वर्जन मौजूद हो, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके पास जो है वो पावर पिवट जो टैब है वो इनेबल्ड हो, ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं क्लिक करूंगा ऐड टू डेटा मॉडल पे, ठीक है। अब ये प्रोसेस होगा और आप देख सकते हैं कि मेरा ये डेटा रीड हो रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही ये डेटा रीड हुआ तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेबल का। अब वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इस नॉर्मल रेंज को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया। अगर मैंने टेबल के फॉर्मेट में इसको रखा होता तो डायरेक्ट ये डेटा पुश हो जाता डेटा मॉडल में। तो उसका मतलब सबसे पहले आपको इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है जी। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ और अब ये डेटा जो है आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पावर पिवट की विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें आपको ये डेटा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगेन एक्सेल पे आने के लिए आपको ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे छोटा सा एक्सेल का आइकन नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है स्विच टू वर्कबुक, और लेट सपोज कि मैं इस टेबल 1 को डेट्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं वापस इस पावर पिवट की विंडो की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी टेबल 1 को रीनेम कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं ये डेटा आपके पास पावर पिवट की विंडो में मौजूद है। अच्छा, आप इसका जो इंटरफेस है वो नॉर्मली एक्सेल की तरह ही, अगर आप एक्सेल की स्क्रीन को देखें जो डेटा आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और अगर आप पावर पिवट की स्क्रीन को देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो एक्सेल की तरह ही रखा गया है, लेकिन ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ठीक है। आप यहाँ पर डेटा को डिलीट नहीं कर सकते या आप डेटा को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिक्योर्ड है और जो चेंजेस होंगी वो डेफिनेटली डेटा सोर्स में होंगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये पावर पिवट की कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो पर शीट लिमिटेशन होती है 1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली रॉस की, लेकिन पावर पिवट के अंदर आपके पास कोई नंबर ऑफ रॉस की लिमिटेशन नहीं है, नॉर्मल एक्सेल की शीट में सिर्फ लिमिटेशन होती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा यहाँ पर कंपाइल करके और अनलिमिटेड बिग डेटा को यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इनिशियली एक एक्सेल की फाइल का जो डेटा है वो पुश किया है डेटा मॉडल में।
अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो डेटा है वो इंपोर्ट करेंगे पावर पिवट में। तो उसको करने के लिए मैं क्लिक करूंगा फ्रॉम डेटाबेस पर, और फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है फ्रॉम एक्सेस। ठीक है, सो जब मैं फ्रॉम एक्सेस, टेबल इंपोर्ट विजिट के नाम से एक स्क्रीन मौजूद है जहां पर मैं उस एक्सेस की फाइल को लोकेट करूंगा। ठीक है जी, और मेरे पास सुपर स्टोर के नाम से वो एक्सेस की फाइल मौजूद है। मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक है सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड व्यूज टू चूज द डेटा टू इंपोर्ट, कि इस एक्सेस की फाइल में जितने भी टेबल्स हैं उसका व्यू मुझे नजर आएगा और मैं उसमें से चूज कर सकता हूँ कि मुझे कितने कॉलम्स या टेबल्स को इंपोर्ट करना है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है राइट अ क्यूरी दैट विल स्पेसिफाई द डेटा टू इंपोर्ट, कि मैं एसक्यूएल लिखूं और फिर मैं कॉल करूं कि मुझे कौन कौन सा डेटा इंपोर्ट करवाना है। सो मैं फ्रंट एंड को इस्तेमाल करते हुए टेबल्स की मदद से डेटा इंपोर्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पे दो टेबल्स नजर आ रहे हैं, सबसे पहला है कस्टमर्स और दूसरा है ऑर्डर्स। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये समझूं कि मैं सिर्फ कस्टमर्स के टेबल को इंपोर्ट करके फिनिश कर दूं और लेटर ऑन मुझे ये पता चले कि मुझे ऑर्डर्स के टेबल को भी इंपोर्ट करवाना था, वो क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी रिलेशनशिप या कोई ऐसा कॉलम मौजूद हो और मुझे लेटर ऑन कुछ इन्फॉर्मेशन ऑर्डर्स के टेबल से एक्सट्रैक्ट करनी हो जो मेरे पास कस्टमर के टेबल में नहीं है, तो फिर ये मेरे लिए मसला हो सकता है। तो लॉजिकली कस्टमर्स और ऑर्डर्स के टेबल के बिटवीन में कस्टमर आईडी एक ऐसी की है जो इन दो टेबल्स को ज्वाइन करके रख सकती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप पावर पिवट के अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा लेकर आते हैं टेबल्स के फॉर्मेट में, और जब आप रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं जो हम लेटर ऑन करेंगे, तो उसमें आपको डायमेंशन टेबल्स और फैक्ट टेबल्स का बड़ा ख्याल रखना होगा। रिलेशनशिप उस वक्त बन पाएगा जब आप एक फैक्ट टेबल को डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे। दो फैक्ट टेबल आपस में कभी कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और बैकएंड पे जो रिलेशनशिप्स बनती हैं और इसके बाद जो स्कीमा क्रिएट होता है नॉर्मली वो स्टार स्कीमा कहलाता है। अब ये जो जितनी टर्म्स मैंने इस वक्त इस्तेमाल की इस वीडियो में, जैसे डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, स्टार स्कीमा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं वो यूज़र्स इसको गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा रीड आउट करें और इमेजेस देखें गूगल पे कि किस तरह की हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए। सो यहाँ पर अगर मैं मिस्टेक कर दूं कि कस्टमर्स के टेबल को सिर्फ ऐड करना चाहूँ, लेकिन लेटर ऑन हमने ये बात की कि ऑर्डर्स में भी कुछ डेटा हो सकता है और रिलेशनशिप हो, तो मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड सेलेक्ट रिलेटेड टेबल्स, जो मुझे बताता है कि दो टेबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं, और अगर है तो वो नेसेसरी है कि हम उसे इंपोर्ट कर लें। सो जब मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट रिलेटेड टेबल्स पे, तो यहाँ मुझे एक मैसेज नज़र आता है वन रिलेटेड टेबल वॉज सेलेक्टेड। अच्छा, मैं अगर कस्टमाइजेशन करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि जिस तरह से कस्टमर्स के टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे और हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को सिर्फ इंपोर्ट करना है, कुछ कॉलम्स को हमें अगर एक्सक्लूड करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है प्रीव्यू एंड फिल्टर का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें उस टेबल के बैकएंड पे यानी जो कॉलम्स होंगे वो नज़र आ रहे हैं। और लेट सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर सेगमेंट को एक्सक्लूड करूँ, तो मैं इस कॉलम को अनचेक कर दूंगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलम तो चाहिए होता है लेकिन उसके अंदर के कुछ फील्ड्स आपको नहीं चाहिए, तो आप उसको भी अनचेक करके एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर सकते हैं। मैं फिनिश के बटन पे क्लिक करता हूँ। जितनी भी रॉज होंगी डेफिनेटली वो रीड हो रही हैं और वो रॉज ट्रांसफ़र होके कंप्लीट हो गई। क्लोज के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टॉप बॉटम लेफ्ट साइड पे जो है वो कस्टमर्स और ऑर्डर्स की शीट्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वर्क की बुक के अंदर जो भी टेबल्स थे वो बेसिकली पावर पिवट में ऐड कर दिए हैं, इंपोर्ट कर दिए हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास कुछ मज़ीद डिफरेंट फाइल्स मौजूद हैं। सो हम जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज और लेट सपोज हमारे पास एक नोटपैड की फ़ाइल है। उस नोटपैड की फ़ाइल को हम
इंपोर्ट करेंगे जो रिटर्न्स के नाम से है। और आपको ये मालूम होगा कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो कॉमनली टैब डेलिमिटेड होती हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो कॉलम वाइज ठीक तरह से स्प्लिट हो जाए। और मेक श्योर कि आपने उस ऑप्शन पे चेक लगाया हुआ यूज़ फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स। अगर आप इस ऑप्शन पे चेक नहीं लगाएंगे तो जब आप इंपोर्ट फिनिश करेंगे तो आपके पास ये जो कॉलम टाइटल्स हैं वो कॉलम 1 और कॉलम 2 के नाम से नजर आएंगे, लेकिन हमें इसके ओरिजिनल कॉलम्स को रिटेन रखना है और वो हमें चाहिए होंगे जब हम डेक्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो मेक श्योर कि हम इस पर चेक लगाएं यूज़ फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स पे। अब मैं फिनिश के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, तो जितनी भी रॉस थी वो इंपोर्ट हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेस की फाइल से डेटा कितना स्मूथली एक जगह पर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दो एक्सेल की वर्कबुक्स हैं एक्सटर्नली, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो अगेन हम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जाएंगे और इस मतलब हमारे पास एक्सेल की फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको ब्राउज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के नाम से मेरे पास एक फाइल मौजूद है। अगेन मुझे चेक लगाना होगा यूज फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स पे। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स और दूसरा लिखा हुआ है प्रोडक्ट शीट और डॉलर का साइन। सो बेसिकली ये जो पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, ये शीट के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट, और जो ये सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट शीट डॉलर का साइन, ये पूरी शीट है। सो हमें बेसिकली सिर्फ जो टेबल फॉर्मेट में डेटा है उसको इंपोर्ट करना है, पूरी शीट नहीं। सो इसीलिए हम प्रोडक्ट्स पे चेक लगा रहे हैं। ठीक है, फिनिश करेंगे, जितनी रॉज होंगी वो इंपोर्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल वर्कबुक से हमने डेटा इंपोर्ट किया। फिर एक और एक्सेल की वर्कबुक मौजूद है हमारे पास। नेक्स्ट, ब्राउज रीजन्स के नाम से यूज्ड फर्स्ट चॉइस कॉलम हेडर्स पे चेक लगाया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और रीजन्स के नाम से मेरे पास शीट है, मैं उस पर फिनिश करता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमने मल्टीपल सोर्सेस की फाइल से डेटा एक जगह कंपाइल कर लिया है, यानी एक डेटा वेयर हाउस बना लिया है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम डायग्राम व्यू पे क्लिक करते हैं और हमें वो तमाम मुख्तलिफ सोर्सेज के टेबल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी डिफरेंट फाइल्स हमने इंपोर्ट की वो सब टेबल्स के फॉर्म में आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। और बेसिकली अब हम क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, तो आप इसको बहुत आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी रख सकते हैं जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये जो पहली रिलेशनशिप है ये वन टू मैनी की रिलेशनशिप है जो आपको नज़र आ रही है। और जब मैं अपना कर्सर इस लाइन पर रखता हूँ तो देखें दो फील्ड्स हाईलाइट हो जाती हैं अपने अपने टेबल्स के अंदर, जो है कस्टमर आईडी। इसका मतलब कस्टमर आईडी वो एक यूनिक की है जो इन दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर रही है और वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है। यहाँ पर जो ऑर्डर्स का टेबल है ये फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल का मतलब ये होता है जिसमें आपकी रियल ट्रांजेक्शन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, क्रिएट हो रही होती है। और डायमेंशन टेबल वो होता है जिसमें तमाम कॉलम्स के अंदर का जो डेटा होता है वो यूनिक होता है, उसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं होता है। तो एक डायमेंशन टेबल एक फैक्ट टेबल के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। ठीक है, जैसे ये जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स का जो टेबल है ये एक डायमेंशन टेबल है और ऑर्डर्स का टेबल एक फैक्ट टेबल है। अब मैं इन दोनों में एक कॉमन फील्ड आइडेंटिफाई करूंगा। डायमेंशन टेबल में ऑर्डर आईडी के अंदर जो ऑर्डर आईडीज होंगे वो बेसिकली यूनिक होंगे, और ऑर्डर्स जो कि एक फैक्ट टेबल है इसमें ये ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो मैं सिंपली इस ऑर्डर आईडी को ड्रैग करूंगा माउस से और इस ऑर्डर्स के टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी पे ड्रॉप कर दूंगा। सो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो डेट है इसमें मेरे पास ऑर्डर डेट्स ऑर्डर के टेबल में मौजूद है जो एक डायमेंशन और फैक्ट टेबल को ज्वाइन करेगा। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ डायमेंशन टेबल्स को फैक्ट टेबल्स के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी, दो डायमेंशन टेबल्स भी आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली एक फैक्ट टेबल होता है जो सेंटर में होता है और उनके आसपास डिफरेंट डायमेंशंस यानी बिजनेस
के जो डायमेंशन है, जिस तरह से बिजनेस वर्कआउट कर रहा है, उसके साथ हम कनेक्ट करवा रहे होते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट्स के टेबल में SKU ID है जो इस ऑर्डर्स के SKU के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्टार की तरह बनता है कि सेंटर में हमारे पास एक फैक्ट टेबल होता है और उसके आसपास हम जो है वो डायमेंशन टेबल्स रखते हैं। ठीक है। और फिर रिलेशनशिप्स बनाने के बाद हम डेटा व्यू में अगेन आ जाते हैं, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा कंबाइन किया था। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, जैसे मैं यूनिट सेल प्राइस के कॉलम में इस वक्त मौजूद हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इस ब्लैंक सेल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मैं मेजर क्रिएट करूँगा वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट मेजर, जिसमें हम डैक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस कॉलम का सम जो है वो करना है, तो सिंपली मैं ऑटो सम का मेरे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है, मैं क्लिक करता हूँ तो सम ऑफ यूनिट सेल मेरे पास यहाँ पर आ गई। ये एक्सप्लिसिट मेजर को मैं पावर पिवट में रखकर डिफरेंट डायमेंशन के साथ देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डैक्स सिखाऊंगा कि किस तरह से डैक्स अप्लाई की जाते हैं। जस्ट लाइक एक्सेल में एक फार्मूला बार होती है, इस तरह से आपको यहाँ पर भी एक फार्मूला बार नजर आ रही है। जो डिफरेंस आपको मिलेगा पर्टिकुलर के एक्सेल के फंक्शन से बहुत ज़्यादा एडवांस है डैक्स, क्योंकि ये पूरी एक बिजनेस इंटेलिजेंस डैक्स लैंग्वेज है बेसिकली, और इसमें स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मल एक्सेल में हम सेल रेफरेंसेस को कोड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाए वो मैंने आपको सिखाया। डायग्राम व्यू में रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट होती है वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम लिए हैं जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप उसको सेल्फ स्टडी करें। अब मैं पावर पिवट का टैब मौजूद है, और सबसे पहला मेरा काम ये है कि मैं इस डेटा को जो है वो पावर पिवट विंडो में ले जाऊं। लेट सपोज अगर मैं मैनेज के इस आइकन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास पावर पिवट की एक विंडो ओपन हो जाती है जो इंटायरली ब्लैंक है। और ऐसा ही होगा क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जब आप अपना डेटा पावर पिवट में लेकर जाना चाहेंगे, तो द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू फॉलो इज कि यू नीड टू पुट योर डेटा इनटू अ डेटा मॉडल, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज लाइक अराउंड डेटा मॉडलिंग है। तो अभी तक आपका जो डेटा है वो डेटा मॉडल में ऐड नहीं हुआ है। फॉर डूइंग दैट व्हाट यू नीड टू डू इज you will find the add to data model feature on in the tables group. When you click on add to data model, ठीक है, तो आपका ये जो डेटा टेबल के फॉर्मेट में था ये डेटा मॉडल में ऐड हो जाएगा। अब ये पावर पिवट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। और फिर आपके पास ये पावर पिवट की जो विंडो है वो इनेबल हो जाएगी, जिसमें आपको डेटा सबसे पहले नज़र आ रहा है, और नीचे आपको जो एरिया ये नज़र आ रहा है इसमें हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे जो हम कहते हैं जैसे एक्सप्लिसिट मेजर्स क्रिएट करना। और वंस जब हम एक्सप्लिसिट मेजर्स क्रिएट कर लेते हैं तो इसके बाद हम उनको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, और वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का काम करता है अकॉर्डिंग टू द पिवट। ठीक है, जिस तरह से हम उसको ड्रैग करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हम पहला डैक्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिंपल काउंट। जिस तरह से एक्सेल में हम यूज करते हैं काउंट को, इसी तरह से उसका बिहेवियर जो है वो सेम रहता है इन दी पावर पिवट एंड पावर बीआई। So basically the count function counts the number cells in a column that contains numbers excluding the empty rows। ठीक है, blank rows को blank cells को वो छोड़ देगा जिस तरह से एक्सेल में होता है। और ये ख्याल रखिएगा कि अगर उस कॉलम के अंदर नंबर वाले सेल्स के साथ अगर डेट्स वाले सेल्स भी अगर आ गए, या अलग से हम डेट्स वाले कॉलम के ऊपर भी अगर काउंट अप्लाई करते हैं तो डेट्स, बिकॉज डेट्स आर द नंबर्स ऑन द बैक एंड, तो वो भी काउंट हो जाते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल करके। इसको मैं लिख कर आपको बताता हूँ। मैं सिंपली इस विंडो पर मौजूद हूँ जहाँ पर मैं सारे एक्सप्लिसिट मेजर्स को जो है वो कैलकुलेट करवाऊंगा। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके पास फार्मूला बार होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास फार्मूला बार है जहाँ पर आप डैक्स को इस्तेमाल करते हैं। एक डिफरेंस अभी यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ काउंट। ठीक है। और जब मैंने काउंट लिखना स्टार्ट किया तो काउंट जो है, जो अभी मैंने ये नाम दिया है, ये बेसिकली एक्सप्लिसिट मेजर का नाम है। ठीक है। इसके बाद मैंने कॉलन अप्लाई किया, शिफ्ट कॉलन। ठीक है, और इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं अब डेक्स को लिखना स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब आप पावर बीआई में लिखते हैं तो पावर बीआई के अंदर आप जो है
कॉलन यूज नहीं करते, लेकिन जब आप पावर पिवट में लिखते हैं तो आप पावर पिवट में सबसे पहले नाम, फिर कॉलन, देन इक्वल्स टू साइन और फिर उस डेक्स का नाम। लेकिन पावर बीआई के अंदर आप इस कॉलम को हटा देते हैं, सिंपली वहां पर आप जो है यू राइट द नेम ऑफ द डेक्स, देन इक्वल साइन एंड देन यू स्टार्ट विद द नेम ऑफ द डेक्स एंड देन द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो काउंट करवाना है हमें, किसे काउंट करवाना है, लेट्स से कि हम क्वांटिटी के कॉलम को काउंट यहाँ पर करवाते हैं। तो सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि कॉलम का नाम बताएं। डेफिनेटली ये टेबल स्ट्रक्चर में टेबल, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो इस टेबल का नाम है, और उस टेबल के अंदर एक कॉलम है क्वांटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, राइट। तो हम यहाँ पर आएंगे और टैब की प्रेस करेंगे, जिससे ये लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें काउंट पता चल जाएगा कि इस कॉलम के अंदर जो है कितने हमारे पास नंबर्स वाले सेल्स हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि उसने ब्लैंक वाले सेल को पिक नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम काउंट हम एक ऐसा कॉलम पिक करें जिसमें टेक्स्ट हो और उसको अगर हम काउंट में इस्तेमाल करें तो लेट से क्या होता। तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ काउंट विथ टेक्स्ट, ताकि हमें नाम याद रहे कि हम उसमें कौन सी कैलकुलेशन हमने करवाई है। सो इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम टेबल 1 में से लोकेशंस के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें टेक्स्ट वैल्यूज मौजूद है। और जैसे ही मैं इसकी कॉलम के विड्थ को इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो एरर जनरेट करे, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काउंट का फंक्शन जो है वो नंबर्स वाले सेल्स को काउंट करता था। ठीक है, सो नाउ इट्स क्लियर। इसके बाद अगर हम काउंट के फंक्शन को डेट्स के कॉलम पर अप्लाई करें तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, काउंट विथ डेट्स, और यहाँ पर हमने लिया इक्वल्स टू काउंट टेबल 1 इज द नेम ऑफ द टेबल, और इसके बाद हमने डेट्स के कॉलम को पिक कर लिया। तो वो मुझे 1 रिटर्न कर रहा है बिकॉज यहाँ पर जो है इस कॉलम में एक ही डेट है जो कि नंबर है बैकएंड पे, तो मुझे यहाँ पर 1 रिटर्न कर रहा है काउंट का फंक्शन। दिस वाज द काउंट फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम आए थोड़ा सा और मजीद, तो हमारे पास जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी हैव द काउंट ए फंक्शन व्हिच काउंट्स द cells including the text values or the numbers, right? So similarly the same operation has can be done in Power Pivot and Power BI as well. तो हम यहाँ पर यूज करेंगे count a function, so equals to count a, राइट। और इस मरतबा हम कॉलम का जो नाम यहाँ पर ले रहे हैं वो दैट विल बी टेबल 1 एंड लोकेशंस, जिसमें टेक्स्ट वैल्यूज मेरे पास मौजूद है, और वो मुझे 5 रिटर्न कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने काउंट ए किस पे अप्लाई किया है, टेबल 1, यानी टेबल 1 इस टेबल का नाम है और उसमें लोकेशंस, तो देर आर 5 वैल्यूज। ठीक है, एक ब्लैंक है काउंट ए, अगेन जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक वैल्यू सेल्स काउंट नहीं होते, इसी तरह से पावर पिवट और बीआई के अंदर भी blank cells count नहीं होंगे। So that will give me a number of cells which have the text or the numbers। ठीक है, but ये जो count एक मुझे जो value return कर रहा है that is 5 includes the duplicates। and what if I want the distinct count or a number of rows, तो हमारे पास वो DAX भी मौजूद है, जो कि Microsoft Excel में straight forward मौजूद नहीं है। distinct count के लिए हमें थोड़ा सा complex formula create करना पड़ता है इन एक्सेल, बट यहाँ पर हमारे पास वो फैसिलिटी डेफिनेटली अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिस्टिंक्ट काउंट अप्लाई करना है तो इक्वल्स टू डिस्टिंक्ट काउंट के नाम से अब हमारे पास डैक्स मौजूद है, जिसमें हमें सिंपल कॉलम का नाम देना होता है। तो फॉर एग्जांपल टेबल 1 के अंदर हम जो लोकेशंस को पिक कर रहे थे हम उसी को ही पिक करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसमें यूनिक वैल्यूज कितनी है। तो अगर आप देखें तो वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 3। अब ये मुझे 3 क्यों रिटर्न कर रहा है, 2 क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है। बेसिकली कराची और लाहौर ये सिर्फ 2 ही लोकेशन इसमें मौजूद है, बट यहाँ पर एक यूनिकनेस ये है कि इसमें एक ब्लैंक सेल भी मौजूद है। तो डिस्टिंक्ट काउंट बेसिकली 3 इसीलिए रिटर्न कर रहा है कि कराची फॉर द फर्स्ट काउंट, लाहौर फॉर द सेकंड डिस्टिंक्ट काउंट एंड द ब्लैंक सेल एज वेल, सो इट्स गिविंग मी द 3। फिर हमारे पास एक और डेक्स मौजूद है that gives me a total number of rows presented in the table basically। तो उस डेक्स को हम कहते हैं काउंट रॉस, जो हमें रिटर्न करता है कि जनाब कितनी नंबर ऑफ रॉस आपके पास मौजूद है। सिंपली वी विल राइट, फर्स्ट वी विल गिव द नेम ऑफ दैट डेक्स, ठीक है, फिर कॉलन इक्वल टू एंड देन वी विल कॉल द काउंट रॉस and then the table name, we just need to give the table name, that's it।
तो there are total of 6 rows presented in this table, right? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई फिल्टर समथिंग, अगर मैं नेम्स में से 2 प्रोडक्ट्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ओके करता हूँ, so you can see that the count rows change its number. Basically the concept is कि ये DAX filter context का काम कर रहा है. Similarly होता ये है कि जो आपके पास डेटाबेस होता है, चाहे वो पावर पिवट में हो या पावर बीआई में हो, आप डैशबोर्ड पर जो है वो स्लाइसर्स और विजुअलाइजेशंस को जब इनपुट करते हैं और जब आप क्लिक करते हैं उस इंटरफेस पे, तो बैकएंड पे डायरेक्ट क्यूरी रन होती है और वो आपको डेटा फेच करके दे रही होती है. तो हम बहुत सारे ऐसे एक्सप्लिसिट मेजर्स बनाते हैं कि जब हम किसी स्लाइसर पे क्लिक करें या किसी विजुअलाइजेशन पे क्लिक करें तो वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वाला काम करके दे. तो इसीलिए यहाँ पर दिखाने का मकसद ये था कि आप जब फिल्टर्स करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, तो अकॉर्डिंगली वो स्लाइसर अपने आप को मोल्ड कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है. बेसिकली वो एक्सप्लिसिट मेजर जो है, ये जो मेजर्स हैं आपके पास, वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द फिल्टर ऑफ दिस डेटा. ठीक है. नेक्स्ट अगेन हम कुछ मजीद डेक्स के ऊपर आते हैं जो काउंट से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे काउंट रॉस की जगह मैं कुछ और परफॉर्म करना चाहूँ, कि मुझे ब्लैंक सेल का भी काउंट मिल जाए और उसके अंदर पर्टिकुलर जो वैल्यूज या टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी मिल जाए, तो जस्ट लाइक इन एक्सेल हम यहाँ पर वो परफॉर्म कर सकते हैं. मैं काउंट ए का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा काउंट ब्लैंक्स के साथ. तो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले मैं काउंट ए के डेक्स को कॉल करूंगा जिसमें मैं कॉलम बताऊंगा, दैट विल बी द टेबल 1, और उसके अंदर हम लेट्स सपोज लोकेशंस को लेते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं प्लस का साइन लगाऊंगा कि मैं एक और फंक्शन को इसमें ऐड कर रहा हूँ जो कि एडिशन करेगा. दोनों फंक्शन जब मिलेंगे, दोनों डेक्स का जो आउटपुट होगा वो बेसिकली ऐड हो जाएगा. तो इसमें मेरे पास काउंट ब्लैंक मौजूद है जिसमें अगेन मैं टेबल 1 और लोकेशंस को पिक करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि ये भी मुझे काउंट ए और काउंट ब्लैंक का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे 6 रिटर्न कर रहा है, और मैंने उसको कुछ इस तरह से लिखा है, विच इज़ वेरी सिंपल. जिस तरह से हम नॉर्मली एक्सेल में लिखते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर भी इसको लिख दिया है. ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी. इसके बाद हमारे पास मजीद कुछ टैग्स मौजूद हैं. जैसे काउंट रॉज जो है वो इस वक्त मुझे 6 रिटर्न कर रहा है, राइट. और हमने यहाँ पर हमने यहाँ टेबल 1 रेफरेंस दिया है कि भाई टोटल इस टेबल के अंदर टोटल रॉस कितनी है. लेकिन काउंट रॉस के अंदर हम एक स्टेप और फर्दर जा सकते हैं और उसके अंदर हम किसी एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं. कैसे करेंगे उस मैं आपको डेमो देता हूँ. फॉर एग्जांपल काउंट रॉस विथ एक्सप्रेशन. अगर मैं विथ एक्सप्रेशन इसकी बात करूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा काउंट रॉस. ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और डैक्स अप्लाई करूंगा, दैट इज कॉल्ड फिल्टर. सही है. और इस फिल्टर के अंदर, फिल्टर के डेक्स के अंदर, फिल्टर बेसिकली क्या करेगा, आपके उस क्राइटेरिया को सर्च आउट करेगा. अगर वो कंडीशन ट्रू होती होगी तो आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा. वो फिल्टर के अंदर बहुत सिंपल है. जैसे आप सम मैक्स के अंदर क्राइटेरिया की रेंज और क्राइटेरिया डिफाइन करते थे नॉर्मली एक्सेल के अंदर, सिमिलरली यू नीड टू execute filter in the same way. So first you need to define the table name in the filter, which is table 1 in our case, राइट. और फिर फिल्टर एक्सप्रेशन. अब आपको लिखना होगा कि आप किस कॉलम के अंदर कौन सी चीज स्पेसिफिकली चाहते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं लोकेशंस के कॉलम के अंदर से सिर्फ जो काउंट निकालना चाहता हूँ वो कराची वाली रॉस का निकालना चाहता हूँ, तो मैंने उसको लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दिया. अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास आपको एक एरर नज़र आ रहा है. इसका मतलब ये कि हमने कोई एक्सप्रेशन की मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि जब 2 ब्रैकेट्स हमने ओपन किए तो एट दी एंड हम 2 ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे. ठीक है, जैसे नेस्टेड इफ में होता था, अगर आप उसको रिकॉल करें एक्सेल के अंदर, तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी ऐसा ही होता है. तो आप देख सकते हैं कि काउंट रॉस के अंदर हमने एक स्टेप को और ऐड किया, दैट इज गिविंग अस the filter of only the Karachi, only those cells which contain the Karachi, right. So we can add the expression. इसीलिए start of this video के अंदर मैंने expressions पे ज़्यादा ध्यान दिया था, right. Now there are two last count DAX remaining, and that are also very important. The first one is count X, and then is count AX. So count X को ज़रा हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि count X होता क्या है. Basically the count X
function allows us to extend the operation of count. हम एक स्टेप जो हम नॉर्मल काउंट होता है हम एक स्टेप उसमें ज्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं एंड टेक एज एन आर्ग्यूमेंट एंड और एन एक्सप्रेशन दैट इज इवैल्यूएटेड ओवर अ टेबल. ठीक है, तो अब हम उसके अंदर बेसिकली हम एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं. तो जरा देखते हैं किस तरह से. सो इक्वल्स टू काउंट एक्स. तो सबसे पहले वो हमसे कह रहा है कि जी टेबल का नाम आप बताएं. ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम एक और एक्सप्रेशन डेफिनेटली ऐड करेंगे और दैट विल बी द फिल्टर. ठीक है, फिल्टर के अंदर सबसे पहले हम लेंगे टेबल वन, टेबल का नाम, और फिर फिल्टर एक्सप्रेशन के अंदर हम लेंगे उस कॉलम का नाम और उस कॉलम का नाम होगा, लेट सपोज हम क्वांटिटी के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं. अच्छा, हम क्यों यहाँ पर एक सवाल है कि हमने काउंट एक्स के अंदर क्वांटिटी के कॉलम को क्यों लिया. देखिए, काउंट जो है वो वर्कआउट करेगा उस कॉलम के ऊपर जिसके अंदर नंबर वाले सेल्स होंगे. तो इसी तरह से काउंट एक्स भी उन कॉलम्स के ऊपर काम करेगा जिनके अंदर नंबर्स होंगे. तो अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर टेक्स्ट हो तो जिस तरह से काउंट ए है इस तरह से काउंट ए एक्स के नाम से हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है. ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम को लिया. रिमेंबर कि काउंट एक्स उस वक्त काम करेगा व्हेन वी हैव दैट कॉलम रिप्रेजेंट द वैल्यूज नंबर्स बेसिकली. ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि जी टेबल वन के अंदर क्वांटिटी का जो कॉलम है वो होगा लेट सपोज ग्रेटर देन 100. सही है कि फिल्टर करो टेबल वन के अंदर क्वांटिटी के कॉलम को सिर्फ उन्हीं रॉस को जो क्या हो ग्रेटर देन 100 हो. ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एक्सप्रेशन के अंदर क्या आएगा, एक्सप्रेशन के अंदर सिंपल सिंपल उस कॉलम का नाम आएगा दैट इज टेबल वन क्वांटिटी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो ऐसी रॉस थी जिसके अंदर वैल्यू 100 से ज्यादा थी. तो फर्स्ट वन इज 2 3 4 5 और सेकंड वन इज 1 2 3. ये दो रॉज हैं जिसके अंदर जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा की है. तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग अब बिल्ट होना स्टार्ट हो रही है कि काउंट के अंदर हम एक्सप्रेशंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम फिल्टर को हमने जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर कि एक सर्टेन क्राइटेरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं. अगर हमें लेट सपोज मैं आपको एक हिंट देता हूँ, यू कैन प्रैक्टिस के अभी हमने क्वांटिटी के अंदर एक क्राइटेरिया डिफाइन किया. फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हम लोकेशंस के अंदर एक क्राइटेरिया डिफाइन करें तब भी हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन द डिफरेंस विल बी दैट वी विल बी यूजिंग काउंट ए एक्स इंस्टेड ऑफ काउंट एक्स. ठीक है, तो आई होप इट इट इज नाउ क्लियर टू यू कि क्या किस तरह से हो सकता है. ठीक है जी. अच्छा, एक एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिसमें मैं ऑल का फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा था कि जब मैं यहाँ पर किसी भी कॉलम के अंदर किसी क्राइटेरिया को फिल्टर करता हूँ तो नीचे जितनी भी एक्सप्लिसिट मेजर्स हैं वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, क्योंकि डेटा जितना विजिबल है उतनी ही कैलकुलेशंस आपको अपने एक्सप्लिसिट मेजर्स में नजर आएगी. बट व्हाट इफ आई filter something from here and I don't want my results should not be changed in the explicit measure, then how we can do that. Let me tell you कि वो कैसे होगा. ठीक है, so for example हम यहाँ पर काउंट रॉस को यूज करते हैं. ठीक है, और उस काउंट रॉस के अंदर हम ये कहते हैं कि काउंट रॉस विथ ऑल. ठीक है, हम ऑल का बेसिकली एक डैक्स अप्लाई करेंगे. सो हाउ वी कैन अप्लाई दैट काउंट रॉस. ठीक है, अब इसके अंदर एक एक्सप्रेशन ऐड करने जा रहे हैं दैट इज ऑल. ठीक है, ऑल का मतलब बिल्कुल इजी वे में ले लें तो इसका मतलब तमाम सारी चीजें. ठीक है, जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को वो एक्सक्लूड कर देंगी. तो यहाँ पर हम काउंट करवाते हैं रॉस को, लेकिन किस कॉलम के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल टेबल वन के अंदर हमारे पास लोकेशन का एक कॉलम मौजूद है. यहाँ फॉर एग्जांपल हम लोकेशन भी नहीं नेम्स को देखते हैं. ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें स्क्रीन पर तो मेरे पास मैंने अप्लाई किया काउंट रॉस. ठीक है, जो कि टोटल नंबर ऑफ रॉस मुझे रिटर्न करेगा, लेकिन मैंने कहा कि तमाम रॉस को रिटर्न करो जो कि नेम्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, अब इसने क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न किया. तो फॉर एग्जांपल लेटर ऑन अगर मैं इस नेम्स के कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 या 3 प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दूं एंड आई प्रेस ओके, तो स्टिल दिस एक्सप्लिसिट मेजर्स इज रिटर्निंग मी 6.
दिस एक्सप्लिसिट मेजर रिटर्न्स मी 6, लेकिन अगर आप डेटा को देखें तो उसमें सिर्फ 3 रॉज नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर इस काउंट रॉज के अंदर सिंपली हमने काउंट रॉज किया कि भाई टेबल में से मुझे बताओ कि कितनी रॉज हैं, जो विजिबल हैं वो नजर आ रही हैं। सो दिस एक्सप्लिसिट मेजर इज एडजस्टिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट क्यूरी फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काउंट रॉज 6 मुझे इस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि मुझे टोटल नंबर रिटर्न कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल ये सिचुएशंस कहाँ यूज हो सकती हैं? समटाइम्स वी नीड टू कैलकुलेट अ रेशियो और इन्वेंट्री पोर्शन, ठीक है ना, जहाँ पर हमें डिवाइड करवाना है उसको 100% से। तो हम फिर इस तरह के एक्सप्लिसिट मेजर्स बनाते हैं जहाँ पर वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इम्पैक्ट ना रखता हो, ठीक है।